So guys, in the last class we have completed with exercise 3.3 and we have done till this fifth question also. We have done this sine 75 also, okay? Now we'll continue with whatever is left, okay? Now we'll start with question number 6. Let me take the questions first. So these are the next further questions which you have in your exercise 3.3, okay? So now the first one. If I take the first sixth question, that is this. Now what is given? If you say your LHS equals cos pi by 4 minus x into cos pi by 4 minus y minus sine pi by 4 minus x into sine pi by 4 minus y. Now by looking on this, अब यहाँ पर अगर आप ये देख रहे हो, right? So आपको क्या दिख रहा है? We know that cos A cos B minus sin A sin B is a formula of which it is equals to cos of A plus B ना, ये हमें पता है. That is cos A plus B is cos A cos B minus sin A sin B, and similarly cos A minus B is equals to cos A cos B plus sin A sin B. ये फॉर्मूला हमने किया है या नहीं किया है? किया है ना? Yes, all the video participants, you have to actively participate. आपको yes, no ऐसे बोलना है, ठीक है? You got it, no? ये हमने किया है, right? So your LHS will be equal to, ये आपका यहाँ पर this will be termed as A और ये आपका B, ये A और ये B, बराबर. तो cos A cos B minus sin A sin B दिख रहा है, तो आपको आप डायरेक्टली लिख सकते हो this is equals to cos A plus B, right? So it will be cos, now A is pi by 4 minus x plus pi by 4 minus y, right? Now क्या बचेगा आपका? This will be equal to cos of pi by 4 plus pi by 4, that will be pi by 4 minus x plus pi by 4 minus y, right? तो आपका फाइनली यहाँ पर आ जाएगा pi by 4 plus pi by 4. Pi by 4 means 45. 45 plus 45, that is 90, and 90 can be written as pi by 2, and this will be minus x minus y. Finally this will be cos of pi by 2. अगर मैंने माइनस यहाँ पर कॉमन ले लिया तो माइनस ऑफ x प्लस वाई. नाउ व्हाट इज cos pi by 2 minus थीटा? हमने ये सब चीज तो फॉर्मूला किया है. व्हाट इज cos pi by 2 minus थीटा? व्हाट इट इज? sin theta. Sin theta. It is Sin. equals to sin theta. So similarly this is also will be equal to, यहाँ पर आप इसे आप as a theta consider कर सकते हो. Means ये आपका pi by 2 minus theta. You can see it, pi by 2 minus theta जैसे दिख रहा है. So this can be written as sin of pi by theta. So that is, sorry, sin theta, and that theta is x plus y. ये आपका RHS required क्या है? The same thing, and therefore you can say this is equal to your RHS, and you can say hence proved. Clear है? Yes or no? Sir, can you explain again? Yeah, okay. देखो खुशी, आपने ये, आपको देखो दो चीज आपको नहीं पता होगा. सिंस दिस इज योर फर्स्ट क्लास, ये फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा, बराबर. डू यू नो दिस फॉर्मूला? Yes, sir. You know it, okay. So do you know this formula? No, sir. No. तो देखो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हम द फॉर्मूला विच वी आर यूजिंग ओवर हियर, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला आपको पता होंगे और कुछ नहीं होंगे. इसीलिए आपको क्या करना होगा, तो आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पर जो भी लेक्चर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, यू हैव टू वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ इट, ठीक है? उसका रिकॉर्डिंग आपके एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो आपको वो रिकॉर्डिंग देखना होगा टू अटेंड द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? ऑन ट्रिग्नोमेट्री. वैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री के बाद अगला जो चैप्टर शुरू होगा, तो जो भी अगला चैप्टर होगा, जैसे आपका अगला चैप्टर है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो जब हम शुरू करेंगे आपको शुरू से सब कुछ समझ में आते आएगा,
ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये कैसा है कि ये चैप्टर ऑलरेडी शुरू हो चुका है, सो यू हैव टू वॉच द रिकॉर्डिंग फॉर इट। हाँ, अगर आपको यहाँ पर सॉल्विंग में देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ये समझ में आया आपको, ये स्टेप से ये स्टेप समझ में आया, सॉरी ये स्टेप आपको समझ में आया, ये वाला, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पर आप cos pi by 2 minus theta is equals to sin theta, why it is like this you can refer the recordings, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने जाओ तो बाकी लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज दे ऑलरेडी नो व्हाई इट इज, ठीक है। सबको पता है ना cos pi by 2 minus theta equals sin theta, yes or no, रिचा? या ओके, फाइन, एंड देन वी कैन से इट इज हेंस प्रूफ। ओके, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अभी हमने ये 6th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। वी कैन ऑल्सो सॉल्व द 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, जो चाहे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व द 7th क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है आपका LHS में, tan pi by 4 plus x अपॉन tan pi by 4 माइनस x। अब आपका ये LHS सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, द फॉर्मूलाज आर, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें अगर यहां पर प्लस की जगह पर अगर माइनस आ गया तो यहां पर माइनस और यहां पर प्लस आ जाएगा, बराबर बराबर। ये फॉर्मूला पता है आपको खुशी? Yes, sir. पता है ना, चलो ठीक है। Now using this formula we'll be solving this. Over here this your a is pi by 4 and your b is x. Fine. So this is tan a, that is tan pi by 4 plus tan x upon 1 minus tan pi by 4 into tan x, this whole divided by, इक्वल साइन आपका यहां पर आएगा बिकॉज मेन डिवाइजर आपका ये है, दिस होल डिवाइडेड बाय, इसका क्या आएगा, tan pi by 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan pi by 4 into tan x. Fine. Now this will be equal to, यहां पर this tan pi by 4 is equals to, tan pi by 4 का वैल्यू क्या है, that is 1, so 1 plus tan x upon, this will be again, इसका भी वैल्यू क्या है आपका 1 है, so that will also be, this will be 1 minus tan x, दिस होल डिवाइडेड बाय, आपका इक्वल साइन इस तरफ इधर आएगा, नीचे आएगा बिकॉज मेन डिवाइजर ये है, इसका वैल्यू क्या है 1, अगेन दिस विल बी 1 माइनस tan x एंड दिस विल बी 1 प्लस tan x। फाइन, सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू, अब ये नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर जाना चाहता है तो रिवर्स होके जाएगा ऊपर, सो इट विल बी 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x into, this will get reversed, it will be 1 plus tan x upon 1 minus tan x। ये क्या हुआ, दोनों सेम है एग्जैक्टली, सो कैन आई राइट 1 plus tan x upon 1 minus tan x, दोनों सेम है ना एग्जैक्टली, सो आई कैन राइट इट एज होल स्क्वायर, एंड दैट्स व्हाट योर RHS। क्लियर है? Yes, how many Yes, of you have understood? yes. Clear, no? Okay, very good. The next is this, चलो ये 8 सम करते हैं, ठीक है, योर 8 सम। अब 8 सम में आपका LHS में क्या है, पहले LHS लिखो, योर LHS इक्वल्स cos pi plus x into cos of minus x upon sin pi minus x into cos pi by 2 plus x। Fine. What is cos pi plus theta? अब यहां पर आपका cos pi plus theta क्या है, एनीवन? आपका देखो ये हमने किया है ना ASTC, इस हिसाब से cos pi plus theta क्या आएगा, माइनस cos theta, बराबर, cos pi plus theta is minus cos theta, so cos pi plus x is minus cos x। इसमें किसी को डाउट है? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड,
the new student will not understand this, I can clearly tell you, but the old student जिनको नहीं समझा ये, then please raise your hand. Fine. Now the next is cos of minus x. cos of minus theta का हमने फॉर्मूला किया है, cos of minus theta is cos theta only, so इसका आंसर आ जाएगा cos x. This whole divided by sin pi minus theta. Sin pi minus theta is again as sin theta only. And cos pi by 2 plus x. Cos pi by 2 plus x will be minus cos x. Fine. तो यहां पर आपका क्या बच गया? This will be minus cos x into cos x upon sin x, और ये माइनस बाहर लिख देता हूं, और ये आपका cos x. ये माइनस माइनस कैंसिल, ये cos x कैंसिल, आपका cos x अपॉन sin x आया. cos x अपॉन sin x कैन बी रिटन एज cot x. बट यहां पर cot स्क्वायर x है, आंसर आया नहीं आपका. हमें तो आपको cos x ही आया. क्या हुआ, कुछ गलत हुआ क्या यहाँ पर? लेट मी सी. cos pi plus theta is cos pi plus theta is cos x only. ASTC ना बराबर है. cos minus theta is cos theta only. sin pi minus theta is sin theta only and cos pi by 2. अच्छा हाँ, यहाँ पर sin theta आएगा ना बेटा. cos pi by 2 है तो तब आपका ट्रिग्नोमेट्री चेंज होता है. So this will be what? Minus sin x बराबर, and that's why यहां पर भी आ जाएगा sin x. So minus minus cancel हो जाएगा. This will be cot x into cot x and this will be equal to cot square x. Clear? Please raise your hands everyone if it is clear. Okay, chalo next. Now let's solve the next problem. ये हमने 8th problem भी कर दिया. अब ये 9th problem भी करना है, तो it is almost the same kind of. देखो यहाँ पर, चलो और एक बार आपको मैं बता देता हूँ, जो हम जो sin pi by 2 प्लस थीटा माइनस थीटा जो कर रहे हैं, बिकॉज देर आर न्यू कुछ है बच्चे जिनको नहीं समझ में आ रहा है. सो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. देखो ये चीज एकदम ध्यान से देखो जो भी मैं कर रहा हूं यहाँ पर. इफ दिस इज माई एक्स एंड वाई एक्सिस, ओके न्यू स्टूडेंट प्लीज लिसन इट प्रॉपरली. ये आपका यहाँ पर 0, दिस विल बी पाई बाई 2, दिस विल बी पाई, दिस विल बी 3 पाई बाई 2 एंड दिस विल बी 2 पाई. ये पाई बाई 2 कैसे आया पता है आपको? दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270 एंड दिस इज 360. इतना क्लियर है? ये हो गया. इसके बाद इतना आपको याद रखना है, एड शुगर टू कॉफी. मतलब क्या? ऑल, यहां पर आता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव. यहां पर साइन एंड कोसेक इज पॉजिटिव, यहां पर टैन एंड कॉट इज पॉजिटिव एंड यहां पर कॉस एंड सेक इज पॉजिटिव. ठीक है, ये ऑल मतलब सारे. यहां पर साइन एंड कोसेक इसलिए बिकॉज कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन. टैन एंड कॉट इसलिए बिकॉज कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन एंड यहां पर कॉस एंड सेक आएगा. ये ASTC आप याद किस तरीके से रखोगे? एड शुगर टू कॉफी, सीक्वेंस याद रखने के लिए. ठीक है, इसके बाद आपको ये याद रखना है, जब भी पाई बाई 2 के मल्टीपल में होगा तब आपका ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगा. अब ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगा मतलब क्या चेंज हो जाएगा? अगर देखो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक, तो ये तो हमें पता है कि ये सारे एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और ये दोनों ये जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है. तो ऑपोजिट में चेंज हो जाएगा. साइन जो है कॉस में हो जाएगा और कॉस जो है साइन में हो जाएगा. जो भी मैं बोल रहा हूं कि जब आपका पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के मल्टीपल में है तब आपका ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगा. और किस में चेंज हो जाएगा? साइन से कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक. ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान रखना है. अब नाउ इफ आई आस्क what is, if I ask over here what is sin pi by 2 minus theta. अब sin pi by 2 minus theta, pi by 2 यहां पर है, माइनस थीटा. हम किस क्वाड्रेंट में आ गए? ऑल के क्वाड्रेंट में. ऑल क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है. यहां पर साइन है तो आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा, कंफर्म, बिकॉज इन दिस क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव. इसके बाद
पाई बाय 2 के मल्टीपल में है ना, यहां पर जब भी पाई बाय 2 के मल्टीपल में होगा तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस. So that's why it is cos theta. I'll give you one more example. If I say what is sine pi by 2 plus theta, ठीक है, sin pi by 2 plus theta, यहां पर आ गया pi by 2 and then plus theta is in the second quadrant. You have arrived in the second quadrant. In the second quadrant, what is positive? Sine is positive. What is this? Sine only. That means that your answer is positive. Confirm. ठीक है. Next, आपका it is a multiple of pi by 2. Therefore, the trigonometry will change and the sign will be changed to cos. Easy. Next, if I ask what is tan pi by 2 plus theta. Again, you have tan pi by 2 then plus theta. You have arrived in the second quadrant. In the second quadrant, what is positive? Sine is positive. What is this? This is tan. So this will be, the answer is negative. Confirm. ठीक है. In this quadrant it is sine, no, आप sin pi by 2 plus theta आ गए. Plus theta में you have arrived in the second quadrant, and in the second quadrant sine is positive and cosec is positive. The rest all trigonometric ratios are negative. Since this is tan, so this answer will be negative. Fine. यहां पर pi by 2, it is a multiple of pi by 2, so this will be reversed. So ये tan का क्या हो जाएगा, cot. Clear? Yeah. Now if I ask what is sin pi plus theta, sin pi plus theta कहां पर आएगा, ये आ गया sin pi and plus theta. You have arrived in the third quadrant where tan is positive. आपका यहां पर क्या है, sin है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, because it's only tan is positive. Next, it is a multiple of pi. Whenever it is a multiple of pi, the trigonometry will not change. That is the same trigonometry. Whenever it is a multiple of pi by 2, only then the trigonometry will change. Whenever it is a multiple of pi, the trigonometry will not change. I'll give you one more example. If I ask what is tan 2 pi minus theta, tan 2 pi minus theta. Now you have arrived in the fourth quadrant. In the fourth quadrant, cos is positive. What is this? This is tan. So answer is negative. Confirm. Up, it is a multiple of pi. So therefore your answer will be tan theta only. Clear? देखो 3 pi by 2 माइनस थीटा, मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, tan के क्वाड्रेंट में. यहां पर क्या है, cos, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, माइनस साइन थीटा, Negative. negative. It will be negative. And since it is 3 pi by 2, it is a multiple of pi by 2, so the trigonometry will change. So cos का क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा. क्लियर है? Next, I will ask you one more thing. What is tan 7 pi by 2 plus theta? अब आप बोलोगे ये 7 pi by 2 कहां पर है, कहां पर है, यहां पर pi by 2 है, यहां पर 3 pi by 2, तो यहां पर आ जाएगा 5 pi by 2 एंड यहां पर आ जाएगा 7 pi by 2. बिकॉज देखो यहां पर pi by 2 आया, प्लस पाई गिव्स यू 3 pi by 2, प्लस पाई गिव्स यू 5 pi by 2, प्लस पाई गिव्स यू 7 pi by 2. ठीक है, तो 7 pi by 2 आपका अल्टीमेटली कहां पर है, नीचे है. तो 7 pi by 2, 7 pi by 2 आप घूमकर यहां पर आए, प्लस थीटा, you have arrived in the fourth quadrant. So tell me the answer. माइनस कॉट थीटा, Minus cot theta. minus cot theta. Perfect. क्लियर ना अभी? ऐसे there are many formulas. You don't need to remember anything if you understand this concept. ये कॉन्सेप्ट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं गिवन है. यू प्लीज अंडरस्टैंड इट ओवर हियर ओनली. ठीक है, आपको जो भी अभी बताया गया, ये आपको टेक्स्ट बुक में सिर्फ फॉर्मूलाज लिस्टेड है और सारे फॉर्मूलाज याद करने बोलेंगे फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. इट इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक. प्लीज अंडरस्टैंड दिस ओवर हियर ओनली, कैसे आपको सारे फॉर्मूलाज को याद रखना है. ठीक है, आगे बढ़े, चलो. नाउ लेट्स सॉल्व द नाइन्थ प्रॉब्लम. नाउ दिस over here your LHS equals cos 3 pi by 2 plus x into cos 2 pi
plus x into cot 3 pi by 2 minus x plus cot 2 pi plus x. This is what the LHS is given. अब वही करो ASTC. ठीक है, व्हाट इज cos 3 pi by 2 plus x? 3 pi by 2 कहां पर आएगा? यहां पर. प्लस x मतलब यू हैव अराइव्ड इन द cos quadrant. cos quadrant में cos आपका पॉजिटिव ही होगा, तो आंसर इज पॉजिटिव कंफर्म. एंड सिंस इट इज अ मल्टीपल ऑफ pi by 2, इट विल बी sin x. यस न्यू स्टूडेंट, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, ओके. नेक्स्ट. सर बोलो. सेक होगा कि सर? साइन होगा ना बेटा, cos है ना बेटा, रेसिप्रोकल नहीं करना है. यहां पर देख लो, लीस्ट आउट वापस से करता हूं. साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक. ठीक है, ये सारे जो है रेसिप्रोकल है एक दूसरे के. ऑपोजिट यहां पर है. कॉस का ऑपोजिट क्या है? साइन. यहां पर हम ऑपोजिट करते हैं, रेसिप्रोकल नहीं. cos x इक्वल्स 1 अपॉन sec x एंड sec x इक्वल्स 1 अपॉन cos x. ठीक है, नेक्स्ट. cos 2 pi plus x will be what? cos 2 pi plus theta. cos 2 pi plus theta you will arrive in the first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे चीज पॉजिटिव है, तो आंसर इज पॉजिटिव कंफर्म. 2 pi है मल्टीपल ऑफ pi, so it will be the same trigonometry, it will be cos x. Now cot 3 pi by 2 minus x. tan. Now cot 3 pi by 2 minus x will be, it will come in the quadrant of tan, right? एंड tan के क्वाड्रेंट में आ गए और आपका ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगा, तो cot का हो जाएगा tan and it will be, it is a quadrant of cot and tan only, so it will be tan x now. Plus again, what is cot 2 pi plus x? cot 2 pi आ गया plus x. You have arrived in the first quadrant. cot x. cot 2 pi plus x. cot 2 pi plus क्या x क्या आ जाएगा? So that will be same trigonometry, cot x. Right? Now this equals sin x into cos x. अब tan x को हम लिख सकते हैं cos x by sin x, सॉरी sin x by cos x, और cot x को लिख सकते हैं cos x by sin x. If we do the cross multiplication in the bracket, यहां पर sin into sin, that is sin square x plus cos square x upon sin x cos x into sin x. इसका वैल्यू कितना होता है? sin square x plus cos square x. 1. ये हो जाएगा sin x cos x. ये sin x कैंसिल, ये cos x कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया. आंसर कितना बचा? 1. दैट्स व्हाट योर RHS. देख सकते हो यहां पर. एंड दैट्स इट. Therefore this is what your RHS, and you can say hence proved. इजी है सम या डिफिकल्ट है? नेक्स्ट, ये अभी हमने कौन सा कवर किया? 9th. द नेक्स्ट वन इज दिस 10th प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज दिस. नाउ व्हाट इज गिवन इन द LHS? you have sin n plus 1 into x, sin n plus 2 into x plus cos n plus 1 into x into cos n plus 2 into x. Now can I write it as sin nx plus x into sin nx plus 2x plus cos nx plus x into cos nx plus 2x लिख सकता हूं. अब इसके बाद ये जो वैल्यू है, मैं अगर पहले लिखो और ये वैल्यू बाद में लिखो, कुछ फर्क होगा? 2 plus 3 और 3 plus 2, आंसर इज 5 ऑलवेज. सो आई कैन राइट इट एज cos of nx plus x into cos of nx plus 2x plus
साइन nx प्लस एक्स इंटू साइन nx प्लस 2x। अब ये आपको कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है मुझे बताओ। cos a minus b। हाँ, cos a cos b, we know that since cos a cos b plus sin a sin b is equals to cos of a minus b। ये फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, cos a cos b plus sin a sin b, राइट? वी हैव दिस फॉर्मूला। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू cos a minus b cos of nx plus x minus nx plus 2x। So this will be cos of nx plus x minus nx minus 2x. So nx and nx will get cancelled, plus nx minus nx. X minus 2x will be minus x. It will be cos of minus x. And what we know, cos of minus theta is cos theta only. So it will be cos x. Let's see what is RHS. यही है आपका RHS. And therefore we can say hence proved. You can write over here is equals to RHS first. And then hence proved. Clear, easy. The next is this. चलो आप खुद शुरू करना चाहते हो इसे? Do you want to start this by yourself? You can do it. शुरू करो। क्या कर सकते हैं यहाँ पर? इसमें आपको जो मैंने लास्ट टाइम पर कुछ फॉर्मूलाज बताए थे, उस फॉर्मूलाज को याद कैसे करना है मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो वो फॉर्मूला पेज कहाँ पर है? एक मिनट देख लेता हूँ मैं। cos x minus cos y का फॉर्मूला। हाँ, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पेज आपके पास ये रहा, इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है? तो इसमें से आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा एज पर द गिवन क्वेश्चन? cos a माइनस cos है ना यहाँ पर, ठीक है? तो पहले तो आपका ये फॉर्मूला है, विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन नाउ, ठीक है? हमारे पास क्या फॉर्मूला है? दैट इज cos a माइनस cos b इक्वल्स -2 sin a प्लस b by 2 sin a माइनस b by 2। दिस इज द फॉर्मूला वी हैव, राइट? जस्ट अप्लाई दिस, अप्लाई करो और सॉल्व करो, यू विल गेट इट। फॉर्मूला इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आप कर सकते हो तो खुद से करो, ठीक है? आई विल बी सॉल्विंग दिस, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मैं खुद कर सकता हूं तो खुद से करो। ओवर हियर योर LHS इज cos 3 pi by 2 plus x minus cos 3 pi by 4। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर 4 है। दिस इज 3 pi by 4, दिस इज 3 pi by 4 minus x, right? Now what is cos a minus cos b? -2 sin a plus b by 2, मतलब 3 pi by 4 plus x plus 3 pi by 4 minus x, this whole divided by 2, then sin a minus b, sin a minus b, that is 3 pi by 4 plus x minus 3 pi by 4 minus x by 2। जब भी आपका ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो ब्रैकेट लिखना है, जब प्लस होगा तो कुछ ब्रैकेट नहीं भी लिखोगे तो चल जाता है, ठीक है? नाउ दिस विल बी -2 साइन, ये बोलो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग यस? Sir, but the bracket is there, no? So we can do it, right? No, we cannot do it. Can anyone tell me what will be the reason? I know सबको लगता होगा कि हाँ कर सकते हैं, यही पर तो मिस्टेक होता है, यही तो आपको समझना है। No, sir, Why? because there is minus. No, that is not the reason. क्योंकि सर 2 जो है सबका मल्टीपल है। ऐसा नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। क्या बोल रहे हो? नहीं सुनाई दिया एकता सिंह, आप कुछ बता रहे हो? 1/2 is यस, बताऊं क्यों नहीं कैंसिल हो सकता 2? देखो यहां पर ये जो 2 है ना, ये साइन का एंगल है, एंगल है यहां पर, ये दिस होल इज एंगल। अगर आपको लिखा जाए 2 sin 60 तो आप इसे
इसमें अगर ये मैं ऐसी फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 साइन 60 है, तो साइन 60 को तो हम लिख सकते हैं 2 साइन 120/2। तो अब ये 2 और 2 कैंसिल कर दोगे क्या? इट विल बी इक्वल टू साइन 60। कर सकते हैं ऐसे? नहीं कर सकते ना, बिकॉज दिस 2 इज ऑफ द एंगल। वहां पर वो एंगल का डिवीजन है, और वो बाहर जो 2 है वो नंबर है। ठीक है, सो इसीलिए आप ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं कर सकते। गॉट इट? कितने जन को क्लियर है? प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। किसी को डाउट है तो दे विल आस्क। हाँ, ओके। अजीब अजीब आंसर दिया था कुछ लोगों ने, इधर माइनस है या फिर उधर प्लस, ऐसे कुछ नहीं है। माइनस होगा तो कैंसिल होता है, 2 इंटू -1 इज -2। ठीक है, ओके। सो नाउ दिस विल बी साइन एज इट इज, ये कैंसिल नहीं होगा अभी। नाउ 3π/4 प्लस 3π/4 विल बी हाउ मच? 3π 3π, दैट इज 6π/4। 6π/4, और ये x और -6 कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 2। फाइन। साइन अगेन दिस विल बी 3, अगर ये ब्रैकेट हम ओपन करके पहले लिखते हैं, दिस विल बी 3π/4 प्लस x माइनस 3π/4 प्लस x अपॉन 2। ठीक है, नाउ दिस इज -2 साइन। अब ये 2/1 कंसिडर कर सकते हो, ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा 1/2, सो इट विल बी 6π/8 बराबर, एंड दिस विल बी साइन, यहां पर 3π/4 माइनस 3π/4 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x इज 2x, 2x/2 आ जाएगा। फाइन, सो दिस विल बी -2 साइन, इसे आप कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 3π/4 अगेन, और ये आ जाएगा साइन x। ठीक है, आपको आंसर आ गया -2 साइन 3π/4 इंटू साइन x। आंसर आपका RHS में क्या है? इट इज -√2 साइन x। अभी तक आया नहीं आपको RHS, ये -2 एज इट इज लिखो। साइन 3π/4 को कैन आई राइट इट एज 4π - π/4 इंटू साइन x लिख सकता हूं। 3π को मैं 4π - π इज 3π ओनली, नो आई कैन राइट इट। नाउ अगर दोनों से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? इट विल बी -2 साइन π - π/4 इंटू साइन x। नाउ व्हाट इज साइन π - थीटा? अगेन वही ASTC में चले जाओ। व्हाट इज साइन π - थीटा? व्हाट इज साइन π - थीटा? सर साइन। साइन थीटा। सिर्फ साइन क्यों बोलते हो हमेशा? सिर्फ साइन या कॉस? साइन थीटा पूरा भरो। इससे पहले भी आप हमेशा ऐसे आंसर देते हो। इट विल बी साइन थीटा, एंड थीटा इज π/4। अब साइन π/4 का वैल्यू कितना है? व्हाट इज साइन 45? 1/√2। एक ही बच्चा आंसर दे रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत आगे का पढ़ रहे हो, टेबल भी याद नहीं है किसी को? पता है कि नहीं? व्हाट इज साइन π/4? 1/√2 अरे सर। रुको यार, तुम अकेले अकेले आंसर दे रहे हो। व्हाट इज साइन 30? मोनू, यू विल नॉट आंसर। व्हाट इज साइन 30? 1/2. या tan 60? अब पता नहीं। टेबल भी आपको मैंने, आप लेक्चर देख लो रिकॉर्डिंग्स का, टेबल भी कैसे याद रखना है वो भी बताया मैंने। √3. tan 60 इज √3, हाँ बराबर। ओके, सो यहां पर साइन π/4 आ जाएगा आपका 1/√2 इंटू साइन एक्स बराबर। इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये माइनस आप बाहर रखो, एंड दिस विल बी √2 इंटू √2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स। This √2 and √2 will get cancelled. What will be your answer? -√2 sin x. यही आपका RHS है, देख रहे हो? And you can say this is equals to your RHS, and you can say hence proved. Clear? Yeah? Okay. आगे बढ़ते हैं। Next is 12th sum.
योर LHS इक्वल्स साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ये आपका LHS है। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे इसे, थोड़ा सोचो कैसे सॉल्व करेंगे। सर एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। अरे वाह, बहुत होशियार हो यार तुम तो। साइन 6x प्लस साइन x 4x, और द अदर वन विल बी साइन 6x माइनस साइन 4x, बराबर। अब साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला एंड साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला, आपके पास फॉर्मूला देख लो यहाँ पर। साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला है 2 साइन a प्लस b कॉस a माइनस b बाई 2, और यहाँ पर साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला है। विल बी यूजिंग दिस टू फॉर्मूलाज। ठीक है, ये फॉर्मूलाज कुछ 8 फॉर्मूला है यहाँ पर। ये 8 फॉर्मूला कैसे याद रखना है ये भी आपको बताया गया है। यू हैव टू वॉच द रिकॉर्डिंग्स ऑफ इट। ठीक है, देख लो, याद हो जाएगा। Now sin a plus sin b is 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2. So let's use it. So this will be, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पर your sin a plus b can be written as 2 sin a plus b by 2 into cos a minus, एक मिनट फॉर्मूला ही गलत लिख रहा हूँ। sin a प्लस sin b है, sin a plus sin b is equals to 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2. Similarly, sin a minus sin b is equals to 2 cos a plus b by 2 and sin a minus b by 2. Fine. Now, this will be equal to, अब ये sin a plus sin b है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे to solve this. So it will be 2 sin a plus b by 2, 6 plus 6x plus 4x, that is 10x. 10x by 2 is, यहां पर लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, 6x plus 4x by 2 into cos 6x minus 4x by 2। फिर ये आपका एक ब्रैकेट क्लोज हो गया, नेक्स्ट ब्रैकेट ये दोनों का। सो इट विल बी 2 cos 6x plus 4x by 2 into sin 6x minus 4x by 2. Fine. So this will be equal to 2 sin 10x by 2, that is 5x, 6x, that is 2x by 2, that is cos x। फिर उसके बाद ये हो गया अगेन into 2, this is 4x 10x by 2, that is 5x, 2x by 2, that is sin x। Now I can write this as 2 sin 5x, और यहाँ का cos 5x बाहर ले लेता हूँ, सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में ही है ना, सो आई कैन राइट इट इनटू 2, ये sin x यहाँ पर लिखा और ये cos x यहाँ पर लिखा, लिख सकता हूँ ना ऐसे, या नाउ 2 sin a cos b, 2 sin a cos a is how much? क्या है 2 sin a cos a? sin 2a का फॉर्मूला हमने किया था, सब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ये चैप्टर होगा ही नहीं। sin 2a इक्वल्स व्हाट, 2 sin a इंटू cos a किया था हमने। सो 2 sin a इंटू cos a विल बी इक्वल टू sin 2a, एंड दैट sin 2a विल बी sin of 2, बराबर, एंड दिस ये 2 sin x इंटू cos x विल बी sin 2x। So this will be sin 2 into 5, that is 10x sin 2x। यही है क्या RHS? यही है सेम, इजी है। आधा अधूरा इजी लग रहा है मुझे, ठीक है चलो। एनीवेज आपका फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा हार्ड लगेगा, अदरवाइज इट इज वेरी इजी। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है।
सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, कुछ नहीं, बाकी बस नॉर्मल अलजेब्रा ही है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री। 6x इसे सॉल्व करना है। तो पहले मुझे बताओ कि इसमें आप क्या लेकर सॉल्व कर पाओगे। शुरू कहां से करोगे? सर साइन एक्स प्लस एक्स। क्या क्या? साइन एक्स प्लस एक्स? नहीं, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। 6x के लिए फिर x साइन एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स लिखना पड़ेगा। Sir, sin 2x plus sin 6x. यस, बराबर है। बी कॉन्फिडेंट, आराम से, Okay, मतलब sir. हाँ, बोलो गलत हुआ तो भी क्या 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 टेंशन है, नो प्रॉब्लम, Sir, यू आर अ स्टूडेंट ना। हाँ बोलो। Okay, sir. क्या? 2 sin A plus B upon 2 into cos A minus B upon 2. मुझे नहीं समझा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। ये साइन 2x और ये साइन 6x को हम ऐड करेंगे, इसके साथ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ऐड? Because here the term is a bit different. It's या 2 sin यस 4x. एग्जैक्टली, ओवर हियर देयर यू हैव अ 2 ओवर हियर, राइट। तो यहां पर ये 2 के साथ हमारे पास साइन a प्लस 2 साइन b का फॉर्मूला नहीं है। वी हैव ओनली साइन a प्लस साइन b, साइन a माइनस साइन b, ऐसे टाइप के फॉर्मूलास है, राइट। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को पहले आप साथ में लिखोगे, साइन 2x प्लस साइन 6x plus 2 sin 4x. Now you will solve for this. Now what is sin a plus sin b? 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2. So it will be 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2. And this is plus 2 sin 4x. Fine. Again ये 2 और ये 2 cancel हो जाएगा, No, होगा या नहीं? it's a हाँ, it's an angle. yeah, it will not get cancelled. Okay. Now this will be 2 sin, this will be 2x plus 6x, that is 8x, 8x by 2 is 4x. 2x minus 6x is minus 4x, minus 4x by 2 is cos of minus 2x. Plus 2 sin 4x. Right? So this will be 2 sin 4x. What is cos of minus theta? Cos of minus theta. It is cos theta only. ये फॉर्मूला देख लो आप, ठीक है। देर आर फॉर्मूलाज लाइक दिस, ये भी एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। ये सारा चीज बताया हुआ है, आप लोग अभी थोड़ा लेट आ गए हैं इसलिए। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, cos of minus theta is cos theta, and tan of minus theta is minus tan theta. ठीक है? So cos of minus theta is cos theta only, so it will be cos 2x plus 2 sin 4x. अब इन दोनों में यहां पर you can see that is sin 4x, 2 sin 4x is common. So let's take that as common. 2 sin 4x common आ गया, आपका आ गया cos 2x plus 1. Now what is 1 plus cos 2x? What is 1 plus cos 2x? ये भी अगेन फॉर्मूला। इसके लिए आप पहले तो एक फॉर्मूला पेज बना लो पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में भी आप जब मिसलेनियस करेंगे, इसके बाद में और भी कुछ है, मिसलेनियस भी काफी बड़ा है, आप पूरा फॉर्मूला शीट बना कर आओ। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूलाज है आपके टेक्स्ट बुक में भी है लिस्टेड, ठीक है। सारे सारे इसको एक ही बुक में लिखो, एक ही पेज पर लिखो, ठीक है। और अभी मैं जो पूछ रहा हूं 1 प्लस कॉस 2x इक्वल्स व्हाट, ये आपको तुरंत पता होना चाहिए। पता है किसी को? किसकी ट्रेन बज रही है? ओके। क्या सर? 1 प्लस कॉस 2x इक्वल्स व्हाट? हमारे पास cos 2x के फॉर्मूलाज हैं, कितने फॉर्मूला है? चलो इतने बताओ मुझे, cos 2x के कितने फॉर्मूला है? cos 2x का कितने फॉर्मूला है? 4 सर। 4 है, बराबर, वेरी गुड। एटलीस्ट नंबर तो याद रखो कितने फॉर्मूला है, ठीक है।
इसके जो 4 फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ पर, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। नए बच्चे शायद ये सोचते होंगे सर इतने सारे फॉर्मूला याद कैसे होंगे। बेटा हर चीज का मैंने प्रूफ बताया हुआ है, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, शायद उससे याद हो जाए। ठीक है, हर फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है वो भी बताया गया है। ठीक है, नाउ अब इसमें हम कौन सा यूज करेंगे डिपेंड करेगा। अब देखो ये -1 अगर इस तरफ आ जाए, अगर मैं लिखूं cos 2x का आपके पास जो फॉर्मूला है दैट इज 2 cos स्क्वायर एक्स -1, अगर ये -1 इस तरफ आ गया तो cos 2x + 1 होगा, नहीं है, इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स बराबर। आरएचएस में क्या रिक्वायर्ड है पहले वो देख लेता हूँ। हाँ देखो आरएचएस में वही रिक्वायर्ड है। सो 1 + cos 2x विल बी 2 cos स्क्वायर एक्स, ये 2 और ये 2 मिलके हो जाएगा 4, ये sin 4x और ये cos स्क्वायर एक्स। अब आरएचएस देखो सेम है, सिर्फ आगे पीछे cos स्क्वायर एक्स और sin 4x, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यू कैन राइट इट एज लाइक दैट 4 cos स्क्वायर एक्स into sin 4x, and that's what your RHS, and you can say hence proved। easy समझा या नहीं समझा इतना बताओ, इजी तो नहीं होगा, समझा? चलो देखो यहाँ पर now again 15th problem, cot 4x into sin 5x plus sin 3x into cot x, ये आपको प्रूफ करना है। सेम है, ये आप खुद से भी कर सकते हो, sin a प्लस sin b का हमारे पास फॉर्मूला है, sin a माइनस sin b का फॉर्मूला है, दोनों सॉल्व करो, LHS और RHS दोनों सॉल्व करना होगा इसमें। ठीक है, सॉल्व करो आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं मिला तो अगले क्लास में पूछ लेना। ठीक है, someone is have been unmuted, खुशी गुप्ता प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, चलो ये करते हैं 16th प्रॉब्लम। Now over here your LHS equals cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin 3x। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, आई विल गिव यू द फॉर्मूला, ये सब मैं सॉल्व करने वाला नहीं, आई विल गिव यू सम टाइम, यू ट्राई सॉल्विंग, चेक इट वेदर यू आर गेटिंग इट और नॉट। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है, चलो यही से मैं फॉर्मूला में से उठा देता हूं, ये रहा आपका फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला यूज करो और सॉल्व करो। आपको इसके लिए फर्स्ट वन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, और डिनोमिनेटर के लिए ये आपका न्यूमरेटर के लिए होगा, और डिनोमिनेटर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करो बस। अब इससे ज्यादा क्या दे यार, अब खुद से सॉल्व होना चाहिए आपसे। सी ये भी सम सेम है, sin 5x sin 3x ऐड करो, sin a प्लस sin b cos a प्लस cos b। ठीक है, द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यहां पर भी सेम है, लेकिन यहां पर कुछ चेंजेस है, यहां पर हाफ एंगल कैसे हैं। चलो ये वाला मैं सॉल्व करता हूं, ये भी सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम है, ये होमवर्क में करो। ठीक है, चलो ये वाला 18 प्रॉब्लम में अभी सॉल्व करता हूं। नाउ ओवर हियर व्हाट इज योर LHS, sin x minus sin y upon cos x plus cos y। Now what is sin a minus sin b? It is 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2, right? This whole divided by cos x plus cos y, cos x plus cos y, sin cos cos sin cos cos, it will be 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2। ठीक है, सिंपल है, ये तो बहुत ही इजी था यार, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ये और ये कैंसिल हो गया,
ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस इज व्हाट, tan। क्लियर है, इजी है, दिस वाज वेरी इजी। Yes, sir. Yes. ओके 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 ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मानसी आपको समझ में आ रहा है? टुडे यू आर नॉट रिस्पॉन्सिव, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो आज। यस सर। हाँ, क्या बात सर है, बना चुके हैं हम। क्या हुआ? समझ रहे हैं सर, बना भी समझ, चुके अच्छा बना लिए, ओके ओके, बना लिए तो बताओगे नहीं? ओके नेक्स्ट। हैं। थोड़ा नेटवर्क इशू है सर अच्छा इसलिए। अच्छा, नेटवर्क इशू है, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज साइन एक्स माइनस साइन 3x और नीचे है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे करोगे इसे? LHS इक्वल्स साइन एक्स माइनस साइन 3x और नीचे है आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हमें एक चीज पता है इसमें कि दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, कॉस 2x। कॉस 2x के 4 फॉर्मूला लिखे थे ना? यस यस। हाँ, उसमें से ये एक था, बराबर। अगर अब मैं इसी को उल्टा करूं, दोनों साइड अगर माइनस मल्टीप्लाई करूं, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। माइनस मल्टीप्लाई करने से उल्टा हो जाता है, a माइनस बी को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करो b माइनस ए हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर अगर मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू माइनस कॉस 2x। ठीक है, तो यहां पर ये वाला चीज हम इधर से डायरेक्टली ले सकते हैं, दैट इज माइनस कॉस 2x। ठीक है, नाउ ये साइन ए माइनस साइन बी, इसके लिए आप साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला यूज करोगे। व्हाट इज दैट? साइन कॉस कॉस साइन आ जाएगा, सो 2 कॉस एक्स प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस 3x बाई 2 और नीचे आ जाएगा माइनस कॉस 2x, बराबर। दिस इक्वल्स 2 कॉस 4x बाई 2 दैट इज 2x, ये साइन x माइनस दैट इज साइन माइनस 2x बाई 2, ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस x और नीचे आ जाएगा cos 2x, माइनस ऑलरेडी है, ये cos 2x ये cos 2x कैंसिल, माइनस ये 2 साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर और यहां पर साइन x और नीचे -1 है, माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 2 साइन x। ये है क्या आंसर? यस, वही आंसर है। ठीक है, कुछ को ऐसे लगता होगा क्या सर कुछ भी सब बराबर ही आ रहा है, हम सॉल्व करते हैं तो कुछ अलग ही आता है। होता है, आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, यहाँ पर सर सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी कैंसिल नहीं करते और लास्ट में आंसर राइट ही आ जाता है, ऊपर जो पूछा है वही नीचे आ रहा है, बराबर। ये बस प्रैक्टिस का कमाल है और कुछ नहीं। अब मैं कितनी बार सिखा चुका हूँ सेम सेम प्रॉब्लम, तो सही सही आएगा ना। ऐसे कुछ नहीं, मैंने याद कर लिया है प्रॉब्लम, बस हो जाता है वो सम सॉल्व राइट ही हो जाता है। ठीक है, हमें क्लैरिटी होता है कि कहाँ पर रॉन्ग हो सकता है सम। Sir, I'm a bit too late to solve. या It takes me a लॉट bit ऑफ time. टाइम, या सो यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, दिस Yeah. इज नॉर्मल अलजेब्रा। अगर आपको एक बार प्रैक्टिस लग गया, यू आर कॉन्फिडेंट। देखो क्या होता है, कुछ लोग अगर यही लिखेंगे ना, तो ये टू, अगर यही स्टेटमेंट अगर लिखना है तो टू फिर कॉस, कॉस के बाद क्या करना है, हाँ ऐड करना है ना, हाँ तो ऐड करना है, तो फिर ये x आएगा, फिर ये 3x आएगा, फिर इसके नीचे क्या आएगा, फिर इसके नीचे 2 आएगा, ये ऐसे सोच सोच कर लिखता है, इसकी वजह से टाइम चला जाता है। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस होगा तो आप सीधा फटाफट लिखोगे 2x प्लस 3x बाई 2, खत्म। इसी से आपका स्पीड आता है, यू शुड बी हैविंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, तभी आपका स्पीड आएगा एंड तभी यू कैन क्रैक ऑल दी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ठीक है, कोई भी जेई कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम्स है, मैथ्स अगर सारे कोई भी एंट्रेंस ले लो आप, सारे एंट्रेंस में मैथ्स होता ही है। आपको अगर ग्रेजुएशन करना है, मास्टर्स करना है, कुछ भी करना है, हर एक के एंट्रेंस में आपको मैथ्स होगा ही, और मैथ्स आपका तभी होगा व्हेन यू हैव अ गुड कॉन्फिडेंस एंड यू हैव अ गुड प्रैक्टिस। Okay, ठीक है, sir. ठीक है, चलो देन लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। Now this question 21,
अब क्या करोगे, तीन तीन चीजें, तीन चीज का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करोगे, कोई दो चीज को लेकर करना है। लेकिन कोई दो चीज भी लेना है तो उसे भी आपको थोड़ा दिमाग लगा कर लेना होगा। देखो वो भी बताता हूँ क्यों, कैसे दो चीज को चूज करना है। बराबर, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किसी दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को ऐड करने का हमारे पास फॉर्मूला है। बराबर, हमारे पास इन दोनों को ऐड करने जैसा फॉर्मूला है, या इन दोनों को ऐड, या फिर इन दोनों को ऐड करने जैसा फॉर्मूला है। बराबर, तो कोई दो लोग हैं, तो आप मुझे बताओ इन दोनों को ले सकते हैं या नहीं। नहीं। ठीक है, आपके पास ही रखो आंसर, रुको मैं आपको पूछूंगा कौन कौन मुझे बोल रहा है कि इन दोनों को ले सकते हैं, हाँ या ना। ले सकते हैं, ले तो सकते हैं, लेकिन इजियर आंसर इजीली सॉल्व होने के लिए मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जो सर 3x वैल्यू सर RHS के इक्वल है। नहीं बेटा, ऐसे कुछ नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि cos 4x प्लस cos 3x हम शुरुआत में नहीं करेंगे। व्हाट इज द रीजन? So there must be, because if we do cos 4x plus cos 2x, it will be cos 6x. Exactly, we'll be getting an even number, and even number divided by 2 you will get a normal integer, it will not be a fraction. बराबर, अगर आपने 4x plus 3x ऐड किया तो ये हो जाएगा 7x, एंड 7x by 2 आप जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे a plus b by 2 है ना, तो 7x by 2 के लिए क्या हो जाएगा, वो आपका फ्रैक्शन आ जाएगा, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए आपको पहले 4x और 2x को ऐड करना है। इवन इवन नंबर्स या ऑड ऑड नंबर्स लेना है, बिकॉज इवन प्लस इवन गिव्स यू इवन, ऑड प्लस ऑड गिव्स यू इवन। ठीक है, इवन प्लस ऑड गिव्स यू ऑड, ऑड प्लस इवन गिव्स यू ऑड। समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है ना, इवन प्लस इवन इज इवन। हाँ, सो इसीलिए आप क्या करोगे, पहले दो इवन एंगल्स लोगे, दैट इज cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x। ठीक है, दिस होल डिवाइडेड बाय, यहां पर भी आप कोई दो इवन ले लोगे, तो 4x और 2x ले लेते हैं, साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। आगे रखो, ये साइड में रखो। अब क्या करो, इन दोनों को पहले सॉल्व करो, cos 4x प्लस cos 2x इक्वल्स व्हाट, cos a प्लस cos b इज व्हाट, साइन cos cos साइन cos cos, दोनों cos आएगा। पहले इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, फिर इन दोनों को भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो इट इज साइन cos cos साइन cos cos, सो इट विल बी cos 4x प्लस 2x। अब डायरेक्टली करता हूं मैं, ज्यादा आई विल नॉट डू। 4x प्लस 2x इज 6x एंड 6x by 2 is 3x। Again cos 4x minus 2x is 2x, 2x by 2 is x, plus cos 3x, this whole divided by, again sin a plus b, 2 sin cos, it will be sin 6x by 2, that is 3x, cos x plus sin 3x। बराबर, इसमें आपको cos 3x न्यूमरेटर में कॉमन आ जाएगा, सो 2 cos x प्लस 1, इनमें sin 3x आपका कॉमन आ जाएगा, इट विल बी 2 अगेन 2 cos x प्लस 1। अब क्या हो गया, ये और ये कैंसिल, सो क्या बचा, cos अपॉन sin इज cot। लो, फिर से जादू हो गया, वही आ गया जो नीचे था। बराबर, जो ऊपर है वो वही ऑटोमेटिक आ रहा है। सब ऐसे ऑटोमेटिक क्यों आ रहा है, आ जाता है, आप भी करो आ जाता है। ठीक है, क्लियर है सम एवरीवन? नाउ यहां पर कैसे करेंगे इसे, LHS में आपके पास है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot x cot 3x इंटू cot x। पहले क्या करोगे, सारे इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो,
कॉट में ना, कॉट में हमारे पास क्वेश्चन ये नहीं है, फॉर्मूला नहीं है फॉर्मूला, बट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सब कुछ कॉस और साइन में कन्वर्ट करो। सो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस 2x अपॉन साइन 2x माइनस कॉस 2x अपॉन साइन 2x, कॉस 3x अपॉन साइन 3x माइनस कॉस 3x अपॉन साइन 3x, एंड दिस इज cos x अपॉन sin x, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है, इसमें आप पहले एलसीएम ले लोगे। एलसीएम में क्या क्या आएगा, sin x, sin 2x एंड sin 3x इज दी एलसीएम। तो आपका एलसीएम आ जाएगा यहां पर sin x, sin 2x एंड sin 3x बराबर। इस एलसीएम को यहां पर मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ sin 3x बचेगा, तो आपका मिलेगा यहां पर cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 3x माइनस, यहां पर अगर आप सॉल्व करोगे तो 2x और 3x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका ओनली sin x। सो इट विल बी sin x इंटू cos 2x इंटू cos 3x माइनस, यहां पर sin 2x बचेगा, सो इट विल बी sin 2x इंटू cos 3x इंटू cos x। ये कितने जन को समझा, पहले मुझे ये बताओ। कितने जन को समझा ये, कोई मुझे यस बोल ही नहीं Sir, रहा है। I'm not clear with this step. ओके ओके ओके, चलो Yes, यहाँ पर sir. ओके ओके, यहाँ पर एलसीएम लिया है हमने। इन सब में एलसीएम, आपने एलसीएम कैसे निकालना है ये तो पता होना चाहिए। नाउ यू आर इन क्लास 11th, ठीक है। एलसीएम आपका जो भी निकलता है वो वैल्यू आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इस फ्रैक्शन के साथ में। इस फ्रैक्शन के साथ में अगर ये एलसीएम है आपका, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, साइन एक्स और साइन 2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका सिर्फ साइन 3x। देखो वही साइन 3x मैंने यहाँ पर लिखा है और ये बचा हुआ वैल्यू यहाँ पर लिख लो, बराबर। सिमिलरली अगेन एलसीएम आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना है, साइन एक्स और साइन 2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका साइन 3x। तो साइन 3x देखो, नहीं साइन x बचेगा इसमें, तो साइन x देखो यहाँ पर लिखा हुआ है और बाकी दो वैल्यूज एज इट इज, ठीक है। सिमिलरली अगेन यहां पर भी अगर आप एलसीएम मल्टीप्लाई करोगे तो साइन एक्स और साइन 3x कैंसिल होगा, बचेगा आपका साइन 2x, ये रहा साइन 2x और बचा हुआ वैल्यू एज इट इज। क्लियर? ऐसे ही समझाया आपको या फिर आपने कुछ और तरीके से समझा है? चलो जैसे भी समझा है, Yes, समझा sir. है, Now it's clear. क्लियर नो? ओके चलो, वेरी गुड। नाउ अब इसमें से आप कुछ कॉमन लेकर सॉल्व करने को आना चाहिए, ठीक है। कुछ कॉमन लेने के लिए पहले चलो इन दोनों में चेक करते हैं, इज देयर एनीथिंग इन कॉमन। cos x, cos 2x कॉमन है, cos 2x कॉमन है। सो इन दिस इफ आई टेक cos 2x as in common, so what you get, cos x sin 3x minus sin x cos 3x, but this will not be of any use, so will not take it। मैं देख रहा हूं कि कुछ यूज में आने जैसा। अगर मैं इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो इन दोनों में कॉमन क्या है, cos x कॉमन है। चलो एक मिनट, sin 2x cos x sin x और यहां पर sin 3x, तो कहीं पर भी ऐसा कॉमन तो है नहीं जिससे आपको इजीली सॉल्व हो जाए ये क्वेश्चन। We are running out of time currently, we'll be solving this question in the next class, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। I hope everyone has understood everything whatever we have solved in this class today, ठीक है। Yes, sir. समझ में आया? Okay, Yes, you sir. can also give your feedback about your today's class in the chat box, okay। चलो then, bye bye everyone, have a good day, thank you, Thank you, sir. yeah। Thank you, sir.